ثم تدعونه فلا يستجاب لكم صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ بار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہوگی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے، تمہیں ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ ہوگا ایسا کہ اللہ رب العالمین تم پر عذاب مسلط فرماتا رہے گا اور تم اللہ رب العالمین سے اس عذاب کی چھٹکارے سے اس کو پکارتے رہو گے، لیکن اس تمہاری پکار کو اللہ رب العالمین نہیں سنے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ فرماتے ہیں۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سالانہ تربیت کا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے افراد اسلام کو سیکھنے کے لیے، اتنے افراد رب تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور بات ہے، ایک مشہور حدیث ہے کہ فرشتے جو ہیں انشاءاللہ آپ کے گرد گرد دائرہ کیے ہوئے ہوں گے، وہ دائرہ ایسا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ عرش پر اور آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوگا، انشاءاللہ مجھے یہی امید ہے۔ البتہ اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ تربیت گاہ، اس کے منتظمین بھی، البتہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت گاہ اور اس کے منتظمین، اس کے انتظام کرنے والے اور آپ کے ناظرین بلا شبہ وہ بھی مبارکباد کہ ان کی کوششوں کے ساتھ آپ یہاں آئے، اپنی دلچسپی کے ساتھ یہاں آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر نیک کام کی طرف تمہارا ایک قدم بھی چلتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے تمہیں اللہ رب العالمین 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین سے ہی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہم سے وہ دور نہیں کرے گا، یہ نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت گاہ، اس کو تربیت گاہ کس لیے کہا جاتا ہے، اس کو کس لیے آپ نے ورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے، یہ کس لیے تھا؟ کہ بلا شبہ یہ اس لیے ہوگا کہ اسلام کو کس طرح سمجھا جائے، دین اسلام کے اوپر کس طرح عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہونے چاہیے، کون کون سی چیزوں کے ذریعے ہم اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اوپر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی صرف نمازیں ہی پڑھیں۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو جھوٹ کی عادت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا ہی صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے اذکار ٹھیک ہوں۔ اسلام کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی قسم ہے کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے، تمہیں ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے۔ یہاں اپنی ذات سے نکل کر ایک معاشرے کی تشکیل اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی زندگیوں کو تعمیر کرنے کی یہاں بات کی گئی ہے کہ جہاں اب آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشناس کراتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، وہاں آپ انہی اذکار کے ذریعے یہ بھی سیکھیں کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھنے والوں کو کیا سکھانا ہے، میں نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے اس فرد کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ جہاں مجھے کہا گیا کہ نیکی کا حکم دو، وہاں میں اپنے عمل سے اس کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں کہ یہ ہے نیکی اور اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اور وہ برائی سے روکنے کا عمل، جہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، اس سے برائی سے روکنا تو بہت بڑا ہے، مزاحمت جس کو کہا جاتا ہے کہ برائی کو آگے آپ
सूरत अल-असर में कहा गया है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो हक के ऊपर डट गए और हक की तलकीन करते रहे, बचेंगे तो वही, खसारे में तो वही लोग नहीं है, बाकी सारी दुनिया खसारे में है। लेकिन कहा गया है कि नेक अमल भी इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने तरबियत करनी है लोगों की, आप लोगों ने बेड़ा उठाया हुआ है लोगों की तरबियत का, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम तो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम्हें बेहतरीन उम्मत तो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि अपनी जात तक महदूद रह जाओ, तुम्हें बेहतरीन उम्मत तो मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम अपनी जात के अंदर से ही ना निकल सको। और वाकया तो आप लोगों को याद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फरिश्तों को ये हुक्म दिया था कि फलां बस्ती के ऊपर जाके अजाब मुसल्लत कर दो, अजाब नाज़िल कर दो, बल्कि उसको उलट पुलट कर दो, फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वहाँ तो ऐसा बंदा एक मौजूद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से उसकी ज़बान नहीं थकती, जो हर वक्त हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या जवाब था? जाइए पहले उस बंदे को अजाब में मुब्तला कीजिए, पहले उस बंदे को पर अजाब मुसल्लत कीजिए। यही तो असल फसाद की जड़ है, यही तो असल वो मामला है जिसके लिए मैंने इस बस्ती के ऊपर अजाब मुसल्लत करने का कहा है। एक बंदा इनफरादी तौर पर इबादत कर रहा है, हालांकि इस्लाम तो इनफरादियत से निकल के इज्तिमाइयत की तरफ लोगों को बुलाता है, इस्लाम तो इज्तिमाइयत की तरफ लोगों को कहता है कि ये नमाज बाजिमात किस लिए है, ये जिहाद की सबीलिल्लाह किस लिए है, ये दावत इल्लल्लाह किस लिए है? यही है ना कि अपनी जात से निकलो, जिसके लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे। वो क्या था? वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो ज़ात है जिसने अपने पैगंबर को तो दीन हिदायत देकर भेजा है कि तमाम अदियान पर उस दीन को गालिब कर दे। ये जाती इनफरादी ये मामला नहीं है, ये इस्लाम को सीखना और इस्लाम पर अमल करना ये जाती मामला नहीं रह जाता। अगर आप मुसलमान हैं और कहते हैं कि रब्बे ताला की हम ज़मीन पर रहते हैं, रब्बे ताला के हम बंदे हैं, उसकी बात ये नहीं कि अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को महदूद कर लो। यही इस्लामी जमीयत तलबा है, यही एक जमायत का दर्स इस्लामी जमीयत तलबा कि यकमुश्त हो जाओ, एक गिरोह की सूरत में आ जाओ, मुनज़्ज़म तंजीम बन जाओ और जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाओ, और जाइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को दावत दीजिए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तो लोगों के लिए निकाली गई, फिर कहाँ हमारा ये मकसद बनता है, फिर कहाँ हमारा ये मतलब बन जाता है, फिर कहाँ हमारी वो जाती इनफरादी और इनफरादी जिंदगी इसके अंदर आ जाती है। हमने तो इस्लाम के गलबे के लिए कोशिश करनी है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, कि हमने तुमको तो उम्मत वसत बना के भेजा है, हमने तुमको तो उम्मत मरकजी उम्मत बना कर भेजा है ताकि तुम लोगों के गवाह बनो। ये उम्मत वसत क्या है, ये मरकजी उम्मत क्या है? मरकज किसको कहते हैं? कि वो मरकज ना जहाँ से कोई रहनुमाई हासिल करे, वो अफराद या वो गिरोह जहाँ से कोई चीज़ हासिल कर ली जाए। आप तो वो उम्मत है जो देने वाले लोग हैं, फिर इनफरादी हैसियत कहाँ रह जाती है? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है अगर ये तुम काम नहीं करोगे, अगर तुम ये काम कर लोगे करोगे तो तुमको मैं गवाही के लिए खड़ा कर दूंगा। कौन सी गवाही? कि वो गवाही जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में जिस काम के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, दीन इस्लाम के लिए, इंसानी जिंदगी की तामीर के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो वो काम अगर तुमने नहीं किया, वो क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, मैं फिर लोगों के सामने तुम्हें खड़ा कर दूंगा, फिर रसूल तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे या तुम्हारे हक में गवाही देंगे। अगर तुमने ये काम किया तो रसूलुल्लाह से तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे, वो हौज़ कौसर पे खड़े होके यही कहेंगे कि यही मेरा उम्मती है। अगर ये काम नहीं करोगे तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अल्फाज याद नहीं है तो वो कहते हैं मैं अपना चेहरा इनसे दे दूंगा और मैं कहूँगा ये मेरा उम्मती नहीं है, इसको मुझसे दूर ले जाओ, इसने तो मेरे दिन में खराबियां पैदा की है। खराबी है क्या? यही तो खराबी है कि हम लोगों तक नहीं पहुँचते, यही तो खराबी है कि हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत नहीं देते। आज के दौर के अंदर ये अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किस लिए है? ठीक है, हम अपनी इनफरादी जिंदगी तक महदूद रहते हैं,
यही कि हम अपने आप अपनी ज़ात तक महदूद रह गए। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए कि तुम में से उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो ये कहाँ इनफरादी ज़िंदगी रह जाती है, कहाँ ये इनफरादी अपनी ज़ात तक बंदे को महदूद करना सिखाती है, कहाँ ये मुख्तलिफ नज़रियात है जो कहते हैं कि इस्लाम का इस दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को संभालिए, खाइए पिए और मत जाइए। ये क्या बात है? ये किस चीज़ की तरफ लोगों को मबजूल किया जा रहा है, किस चीज़ की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है? असल में इस्लामी जमीयत तलबा का यही मकसद है। इन तालीमी इदारों में जाइए, इन तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स को टारगेट कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए कि तुम अपनी ज़ात तक महदूद नहीं हो। यह तालीमी निज़ाम जो अपनी नौकरी तक लोगों को महदूद कर दिया है, जिसने अपनी ज़ात तक लोगों को महदूद कर दिया है कि इस नौकरी, इस तालीम के ज़रिए पढ़ो और नौकरी हासिल कर लो, यही तुम्हारा मकसद है, बंगले बना लो यही तुम्हारा मकसद है, गाड़ियाँ अच्छी हो यही तुम्हारा मकसद है। आज ज़रूरत इस वक्त की है इन तालीमी इदारों में जाया जाए, इन तालीमी इदारों में लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारी ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बड़ी ज़ात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद के लिए अंबिया कराम को भेजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी की तामीर के लिए जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी अंबिया कराम को भेजा है, इसी एक मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी इख्तियार करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाते हुए इंसानी ज़िंदगी की तामीर करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करे। ये आप आज के दौर के अंदर, आज के तालीमी इदारों में, आपके क्लास फेलोज के अंदर, आपके तालीमी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपकी जो ज़ात है, आपकी जो अगली ज़िंदगी है, वो भी इस सारे दावत के मैदान के अंदर, इस दावत के सिनेरियो के अंदर वो इफेक्ट कर रही होती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका किरदार, वो किरदार जिसके बारे में एक शायर ने भी कहा कि उसने किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। इसका मतलब कि आपका किरदार जो है, आपकी अमली ज़िंदगी या आपकी ज़िंदगी जो जिन लोगों के सामने होगी, वही आप लोगों को अगर आइडियलाइज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को देखेंगे। जिस चीज़ की तरफ आप उनको दावत दे रहे होंगे तो सबसे पहले आप अमल को देखेंगे कि कैसे हो सकता है कि एक बंदे को आप झूठ ना बोलने की तलकीन कर रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि धोखा नहीं देना, और एक दूसरी जगह पे आप खुद ये काम कर रहे हो। कैसे हो सकता है कि आप उसकी ज़िंदगी को तामीर कर रहे हो? कैसे हो सकता है कि अगर वो आपकी ये अमल को देख ले और उसके साथ उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे? ये कैसे हो सकता है? वो तो उल्टा आप उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ रहे होंगे। तो लिहाजा वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसका मफ़हूम है कि अगर तुम्हें लोग देखें तो उनको खुदा याद आ जाए। तो आप लोगों के अंदर वो झलक होनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक का, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहकामात पर अमल की वो झलक आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि आपका किरदार जो है कम अज़ कम इस दावत के मैदान में रुकावट न बने। अगर आपका किरदार इस दावत के मैदान में कोई अच्छा साबित नहीं हो सकता, कम अज़ कम ये तो ख्याल कीजिए कि आपका किरदार इस दावत के मैदान के अंदर, इस दावत के अब्लाग के अंदर आपका जो किरदार है वो रुकावट ना हो। दूसरी चीज़ आपकी तालीम है कि आप तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, आप तालीमी इदारे के अंदर इसी डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, इसी दायरे कार के अंदर आपने स्टूडेंट्स को इस्लाम से जोड़ना है, वहाँ आपकी तालीम भी मैटर करेगी। जहाँ किरदार मैटर कर रहा होता है वहाँ की तालीम भी इसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है कि आप तालीमी इदारों के अंदर अच्छी पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स। आपके बारे में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की वो बात कि जब उनसे पूछा गया कि इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन को कैसे होना चाहिए, उन्होंने कहा इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन को अपनी क्लास के अंदर पहली पोजीशन लेनी चाहिए। हाँ, अगर पहली पोजीशन नहीं ले सकता तो दूसरी पोजीशन लेनी चाहिए, अगर दूसरी पोजीशन नहीं ले सकता तो तीसरी की गुंजाइश नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा को तालीमी इदारों के अंदर एक मुनफरिद शख्स की सूरत में, एक अच्छे और बासलाहियत स्टूडेंट की सूरत में अपनी क्लास के अंदर भी होना चाहिए, अपने तालीमी इदारे के अंदर भी होना चाहिए। ये तालीम ही होती है कि आपकी क्लास के अंदर जहाँ एक अच्छा स्टूडेंट होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है या पहली पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट होता है, उसके बारे में टीचर्स क्या कहते हैं कि कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसको यही कहा जाता है कि स्टूडेंट
इसके साथ बैठो, इसके साथ उठो, खेलो, इसके साथ पढ़ो, यही तुम्हारी जिंदगी को संभाल सकता है। हालांकि यहाँ तक अल्फाज मिले जाते हैं तो मेरे भाइयों तो वो फर्क कम क्यों नहीं हो सकते, जिसके बारे में असातिज़ा भी हमें उन लोगों को कहें कि इस फर्क के साथ आपको बैठना चाहिए। माशरे के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उनके वालिदैन कहें कि ये बंदा जो है, ये जो तालिब इल्म है, या ये जो इस मोहल्ले के अंदर रहने वाला बच्चा है, ये पूरे मोहल्ले के अंदर एक बेहतरीन किरदार का हामिल है। ये क्या क्यों नहीं हो सकता? हम तो इस्लाम के नाम ले हुए हैं, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम ले हुए हैं, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने की बातें करते हैं, हम तो इनकलाब की बातें करते हैं, हम तो इस्लाम के दाई हैं, हम तो माशरे को तब्दील करने की बातें करते हैं। माशरा ऐसे तो तब्दील नहीं होता, अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ें पैदा करनी पड़ती है, उसको रोल मॉडल बना के पेश करना पड़ता है, अपने आप को मॉडल के तौर पर पेश करना पड़ता है, अपने किरदार को, अपनी ज़िंदगी को पेश करना पड़ता है। यही मार्केट का उसूल है ना, कि सैंपल लिखाओ, उसको चेक करेंगे, उसके बाद आपकी चीज़ को सेल किया जाएगा। तो ये हो सकता है, मार्केट का उसूल भी यही है कि अपनी ज़िंदगी को पेश करें, अपने किरदार को उनके सामने पेश करें और कहें कि यही इस्लामी जमीयत तलबा का काम है, यही इस्लामी जमीयत तलबा आपसे तकाजा करती है। तो मेरे भाइयों, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जब आप अमल पैरा होंगे, तो मेरे भाइयों तो मुमकिन नहीं है कि माशरा जो है इस्लामी माशरे की तरफ ना हो। मुमकिन ही नहीं है कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करें, इस्लाम का तो ये उसूल ही नहीं है ना, जब बातिल के मुकाबले में जब हक आ जाए और मुनज़्ज़म तरीके के साथ आ जाए, तो बातिल जितनी बड़ी कुव्वत है हक के मुकाबले में नहीं लड़ सकती, बिल्कुल नहीं लड़ सकती। तो वो 313 थे तो 1000 के लश्कर पे गालिब आए, क्योंकि वो मुनज़्ज़म थे, मुनज़्ज़म कुव्वत के तहत उन्होंने फिर जदोजहद शुरू की। ये तो इस्लाम की फितरत है ना, ये तो